Welcome back, friends. So, in this video, I will try and address something different and something very important you would like to know. What are the political and the economic consequences of this war? We have been good in our predictions. People have had actionable ideas. Today, I made 3 videos during the day also telling you how the markets will move, and they moved exactly that way. Around 3 o'clock, I made a video that now for the next half hour is going to fall. That also went through various periods with sharp rise. All turned out to be perfect. Excellent. Now, where do we go from here? Friends, my people have been asking me that why have you been so cautious in your ideas about where this war is headed, how it is likely to come to an end. See, it unfortunately has reached a stage where egos, personal reputations could cause it to escalate even further at some point of time. There is an off ramp which President Trump has. He may try and use it. Today, there were two important security personnel in the Iranian military who have been eliminated. So that's good and bad. Good from Israel's point of view, they wanted what they wanted. Bad because all this is now also going to breed in some sense of nationalism within the country and make the task of other forces like the United States a little more difficult. All this happening in the month of Ramadan, the holy month, does not make the situation very easy to digest either. It is true that many Iranians not happy with the regime, but yet nationalism sometimes prevails. I believe that the economic effects, and I would rather hasten and go there straight away rather than get into the politics of all this. I'm sure everybody had their good reasons for whatever they are doing, but this may unnecessarily escalate to an extent where egos and personal victories become more important at this point of time. Economic consequences will be felt more by the poorer nations, the more middle income nations across the world, not by countries like the United States. United States is net exporter of crude oil. So it doesn't make much difference to them. But countries which import, China also has some very good reserves, very solid. It's like 6 months of stock lying with them. But India has got about 50 days, which is, in my opinion, not sufficient. The government has got its own reserves and other things, and I do not want to discuss over here. But yet, a country like India, which could face gas shortages, could make the economy rather difficult. Already there are many sectors, कई sectors हैं जहाँ पे गैस शॉर्टेज दिखाई दे रहा है. तो रेस्टोरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. मोदी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, लेकिन कठिन है परिस्थिति. इस वक्त दो करके अगर शिप्स आएंगी और 21 मेरे ख्याल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अभी तक खड़ी है, तो इतना आसान भी नहीं है. मेरे हिसाब से ये सब जो है लेके इकोनॉमिक पेन बढ़ाएगा. द इकोनॉमिक पेन विल गो अप एंड एसेट्स गेट इनटू लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि रिस्क ऑफ होना शुरू हो जाएगा. जो रिस्की एसेट्स की तरफ पैसा जा रहा था वो अब इतना नहीं आएगा. तो जो बैंक्स ने लेंड किए होंगे रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए, वो तकलीफ में आ सकते हैं. आपने कुछ टाइम पहले, 1 महीने से ये बात चल रही है प्राइवेट क्रेडिट की. विश्व में थोड़ा सा डर बैठ गया है कि प्राइवेट क्रेडिट में कोई डिफॉल्ट्स होने की संभावना है. दैट इज वेरी वेरी हाई नाउ. 1 महीना 2 महीने में आप कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है एक डिफॉल्ट आप जरूर देख पाएंगे. जहां तक ये वॉर का सवाल है, मैंने कहा यहां पे तुरंत हो भी जाए अगर समाधान, पर वो टिकेगा नहीं. ठीक है, हाँ, अगर एक थोड़ी भी अच्छी एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाती है तो एक शॉर्ट टर्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक रैली दिखाई देगी. उसमें आप लाभ उठाइएगा. जो आपके जो शेयर्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, उनके लिए आप यू कैन टेक एडवांटेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. This war is going to end up creating a new world order.
अगर अमेरिका ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले तो उसको कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया है, यूरोपियन ईयू है, और अपने साथ ले ले तो उनको चाइना को काउंटरैक्ट करना आसान होगा। वरना आगे चल के चाइना भी अब बहाना ढूंढ लेगा ताइवान को आज नहीं तो कल उसको अटैक करने का, क्योंकि अभी रशिया ने यूक्रेन पे किया, अमेरिका ने ईरान पे किया, तो चाइना बोलेगा हम क्यों पीछे हट जाए भाई, हमारा कहाँ समाधान होगा। अफगानिस्तान और के ऊपर जो बॉम्ब किया पाकिस्तान ने एक अस्पताल के ऊपर, बहुत ही दुखदायी था। वो भी बहुत ही स्पिरिचुअली ये महीना चल रहा है रमज़ान का, उसके अंदर ऐसा होना बहुत गलत बात है, विश्व में होना गलत बात है। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट रिलीजन्स। रमज़ान में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये सब जो है बहुत ही, दिस इज ब्रिंगिंग अननेसेसरी मोर ट्रबल। अब तालिबान भी फिर ढूंढेगा कि हम कब अटैक करें पाकिस्तान को, वो चालू हो जाएगा। एक किए तो दूसरा भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चाइना को भी आज नहीं तो कल एक ऑफ रैम्प मिल जाएगा कि हम ताइवान पे कब हावी हो जाए। तो अमेरिका के लिए बहुत एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी बन जाएगा अगर वो इंडिया, यूरोप, साउथ कोरिया और जापान, ये कंट्रीज़ के साथ एक बना दे ताकि वो काउंटरैक्ट कर सके चाइना। और उसके जो भी स्ट्रेंथ है, चाइना हैज़ बिन वेरी क्वाइट, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपनी चीज़ों को मजबूत करने का। और अमेरिका ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन थोड़ा सा ये मिडल ईस्ट वॉर जो है वो हावी पर गई, क्योंकि काफ़ी कंसंट्रेशन अमेरिकन्स का वहाँ पे जा रहा है इस वक्त। वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ों में जाता है इस वक्त, बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता। इसलिए कहते हैं कि हम झगड़ा तो किसी से भी कर सकते हैं, मैं भी किसी से भी उठ के कर सकता, आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारा ज़िंदगी का जो वक्त है इतना कीमती है दैट हमें क्या इतना वक्त ख़राब करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर? ये आप लोगों को सबको मन के सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट, एक स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस इस वॉर का ये होगा कि जो लोग भी अपने बुरे कर्म कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं या मेहनत नहीं करते हैं, बेकारी के पैसे भर, उनको देखिए कैसे लाठी पड़ती है नेक्स्ट 2-4 सालों में। ये हर विश्व में हर देश को जहां भी इनएफिशिएंसीज हैं, जनता को परेशान किया जाता है बेकार में, हर एक को लाठी पड़ेगी। और मैं बहुत ही कंट्रीब्यूट करता हूं कि मोदी साहब ने अच्छा गवर्नेंस दिया, जो भी इतने साल हो गए, लगभग 12 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी कभी नहीं बुरा था। अब महाराष्ट्र में देखिए, मैं एक चीज़, मेरे कुछ मित्र आए थे अमेरिका से, वो देखना चाहते थे कि भारत क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, और ऐसे मौसम में जहाँ वॉर है ये देश कैसे कोप अप कर रहा है। खुश हुए, लेकिन जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस को देख के वो बहुत ही, दे वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने बहुत देखा कि वो सारा टाइम सिर्फ उनका ध्यान था चालान देखना कि इसने पैसे फाइन के, आगे आके खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले। आप जो लोग देश में ना फॉरेनर्स आ रहे हैं, आप पहला उनको वो देंगे? आपका काम ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करना है, ना कि लोगों से पैसा वसूल करना है। ये सब इनएफिशिएंसीज अगर चलते रहेंगी तो देश कैसे उन्नति करेगा? ये कठिन पीरियड होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब शांति हो गई, लेकिन कुछ महीनों में देखोगा फिर नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ये धीरे धीरे जो है, जो लोग who are not nimble and not on their toes will suffer like anything over the next several years. आज भी हम देखिए हमारे अपने जो ग्रुप्स में हम फास्ट जो पेस करके और लोग समझ जाते हैं कि हम क्या क्या उनको आइडियाज दे रहे हैं, हर दिन एक्शनेबल आइडियाज देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, निफ्टी ऑप्शंस देते हैं, स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं। जो फास्ट और जो मेहनत करते हैं वो बहुत पैसे बनाएंगे, जो नहीं करेंगे बिल्कुल तकलीफ में आ जाएंगे। आपका जब आप पहुंचते हो एयरपोर्ट पे, तभी से आप ये ट्रैफिक पुलिस का ये हाल देख रहे हैं, तो क्या आप इंप्रेशन एक फॉरेनर्स के ऊपर डाल रहे हैं? कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। बहुत आगे भी बढ़े, बहुत अभी तक बहुत आगे बढ़ना बाकी है, जल्दी से उनको करेक्ट करना चाहिए। देश देखो, मौसम अच्छा नहीं है, कुछ साल जो अलर्ट बनेंगे आपको, जब ये शॉर्ट कवरिंग आएगी अच्छे बहुत भागेगा निफ्टी, जब रुकेगा फिर से तकलीफ आ जाएगी, कुछ नए प्रॉब्लम फिर जोर से गिरेगा।
जो लोग निम्बिल रहेंगे ये सब ट्रेंड्स को, अभी जैसे अप्रैल में कुछ पीरियड मुझे बहुत कठिन लग रहा है, मई में दिख रहे हैं तकलीफ, तो वो जो पीरियड हम अपने गिने चुने लोग जो हमारे साथ कंटिन्यूसली रहते हैं उनको पहले बताते हैं. हाँ, इट इज फेयर इनफ. दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर रिसर्च, मेहनत करते हैं वो भी, उनका हक बनता है सबसे पहले उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. क्यों नहीं, जो हमारे साथ हमें जब जो ना कि आया राम गया राम, एक महीना आए फिर एक महीना गए, फिर एक महीना आए फिर गए. हाँ, कठिन हो जाता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं. मेरी पूरी कोशिश YouTube पे भी रहती है आप लोगों को समझाने की कि ना इस मौसम पे बहुत खुश हो जाए किसी वक्त, ना बहुत दुखी हो जाए. अच्छा रैली भी मिलेगी. इस वक्त रिबाउंड चल रहा है, जहां तक चल रहा है अच्छा चल रहा है. जब फिर खिसकेगा एक पीरियड आने वाले कुछ ही टाइम में, कुछ हफ्तों में, फिर आपको कठिनाई आएगी. लेकिन ये सबको कुल मिला के हम आपको अच्छी तरह से अपने YouTube में बताते रहेंगे ये कौन से पीरियड से कहाँ आ रहे हैं, कैसे कहाँ तक ज़्यादा जा सकता है. इकोनॉमिक जो लॉस है तो एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादा इस वक्त फील हो रहा है. तो ज़रूर हमारा ज्वाइन करें कोई भी पैकेज, प्रीमियम वैल्यू, हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में या डेली प्रेडिक्शंस पैकेज 9820861044 इस नंबर पे संपर्क करके. नमस्ते, जय.